शान, युवा दिलों की धड़कन भाई देवेंद्र कादन जी आप सबसे आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में पहुंच चुके हैं। चला दे भाई। देवेंद्र कादन भाई ओ कन्नौर न चमकावेगा, देवेंद्र कादन भाई ओ कन्नौर न चमकावेगा, कन्नौर न चमकावेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. मैं बेटा सब 124 इग्नोर हल्के मैं के घना कसूता चाला रे। जाने गाम का लाल सा ये गरीबा कार खाला रे। नेता नहीं बेटा ये तो ऐसा इंसान रे। नेता नहीं बेटा ये तो ऐसा इंसान है। और की वो शान रे देवेंद्र का ध्यान रे। देवेंद्र का ध्यान रे। देवेंद्र का ध्यान रे। शहर
सिंह का छोरा मारी आन बान शान और की ओ शान रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल एम्बुलेंस 24 घंटे दिन सेवा में तैयार रहे छोटे बड़े का फर्क नहीं उस सब के लायक इशार रहे छोटे बड़े का फर्क नहीं उस सब के लायक इशार रहे उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम रे उल्ट स्कूटी लैपटॉप दे दिए खूब इनाम और की ओ शान रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल शहर में पानी खातर प्याऊ भी लगाए रे दीन दुखी के बाल किसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे दीन दुखी के बाल किसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान और की ओ शान रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल रतविंद्र का दयाल गाम शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले रे देवेंद्र खुद भरा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से लावा कोई लारा रे जड़ छत्ती जात भाईचारा रे जो विकसित सारे का सारा रे तो समझ लियो गन्नौर से गाम शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद भरा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से उसने यो मेटा सबका भरते अंडी पेटा सबका नेता ना यो बेटा सबका समझ लियो गन्नौर से काम मिला बस दे देख बालक भूखे रहे हंसते घर के घर पावे चसते यो समझ लियो गन्नौर से काम शहर जरा साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद भरा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से सारे जड़िया का प्यार मिला रे हरे भरे घर बार मिला रे देवेंद्र की सरकार मिला रे समझ लियो गन्नौर से क्या किया तो तरपाव नशे पते का दौर नया वह पापा जिंदे के शीश झुकावे समझ लियो गन्नौर से काम शहर जरा साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद भरा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से देवेंद्र का ध्यान सुन ले तो छारा से सारे के विकास के पद पे गन्नौर ने लारा सारे के हो जा भला गरीबों का एक रूल देवेंद्र का हो चमके गन्नौर का क्षेत्र योग स्कूल देवेंद्र का हो चमके गन्नौर का क्षेत्र योग स्कूल देवेंद्र का देवेंद्र यो नेता को नहीं बेटा मारा से दे एम्बुलेंस की सेवा रिक्शा फ्री चलाया से और मैं दिल्लान पटोफ डिसीजन पूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का देवेंद्र घोटना चले से वो आम जन की खातिर अपन जिम भी चले से वो करते समर्थन के कट्टे जता दो छोरे ने और बन जमंतरी आगे शिखर चढ़ा दो छोरे ने ना छल कपट से नेचर भी तो फूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं, इनको ताकत देने का काम करें।
और ये बड़ी गांव की सारी सरदारी ने, मातर शक्ति ने, युवा साथियों ने एक इतिहास रच दिया कि आज तक इस गांव में ये पूरा इतने जन सैलाब कभी भी नहीं हुआ होगा। जो आप अपने बेटे, अपने भाई के प्यार में इनको आशीर्वाद देने के लिए जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई, एक बार और दोनों हाथ उड़ाकर जोरदार तालियों के साथ इनको ऊर्जा और ताकत देने का काम करें, क्योंकि आपने अपने बेटे, अपने भाई को आज ये ऊर्जा और ताकत देने का काम किया। आपका बेटा, आपका भाई ये ऊर्जा, ये ताकत आप सबकी सेवा में लगाएगा, इस गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में लगाएगा। आप सभी ने फूल मालाओं के साथ अपने बेटे का जो मान सम्मान बढ़ाया, स्वागत किया, सभी मातृ शक्ति ने जो आशीर्वाद दिया, सभी बुजुर्गों ने, गांव की सरदारी ने जो आशीर्वाद दिया, और सभी युवा साथियों ने जो कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाई का समर्थन किया, हम सभी ग्रामवासियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आपने अपने बेटे के, अपने भाई की ऊर्जा और ताकत बढ़ाने का काम किया है। अभी हमारे बीच में कुछ सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग आजाद पवार जी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। साथ में जिया कश्यप जी, आजाद पवार जी अपने बेटे का पगड़ी के साथ मान सम्मान बढ़ाते हुए हम अपने पूजनीय सम्मानित आजाद पवार जी का दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार इनका स्वागत करें। और हमारे बीच में जिया कश्यप जी भी पगड़ी के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। साथ में महासिंह सरोहा जी और साथ में प्रकाशा सैनी जी, ये सारे हमारे सम्मानित गांव की सरदारी, ये हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग अपने बेटे के सिर पर जो जिम्मेवारी की पगड़ी ये रख रहे हैं, ये बेटा भी इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और आपकी सेवा में, आपके मान सम्मान में, आपके गांव के विकास में और गन्नौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। ये आजाद पवार जी ने, जिया कश्यप जी ने, महासिंह सरोहा जी ने और प्रकाश सैनी जी ने, सभी हमारे पूजनीय सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों ने ये मान सम्मान की पगड़ी जो अपने बेटे के सिर पे रखी है, क्योंकि हमारी हरियाणा की पवित्र भूमि पर सबसे बड़ा मान सम्मान अगर कोई है तो वो पगड़ी का मान सम्मान माना जाता है। सभी का एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे बीच में देवेंद्र सरपंच जी भी देवेंद्र कादन जी का पगड़ी के साथ स्वागत करेंगे। देवेंद्र प्रधान जी ने भी अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाया। हम देवेंद्र जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं और समस्त ग्रामवासियों का भी हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं जो आपने इतना प्यार, मान सम्मान अपने बेटे, अपने भाई को दिया। सभी का तहे दिल से धन्यवाद। अभी हमारे बीच में जगदीश स्नो भीम सिंह जी हमारे सम्मानित मौजूद हैं, जो माला के साथ 21,000 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। जगदीश स्नो भीम सिंह जी 21,000 की माला के साथ हमारे पूजनीय सम्मानित भीम सिंह जी माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम अंकल जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने इतना मान सम्मान अपने बेटे को दिया। साथ में सुरजीत प्रजापत जी भी 5100 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। सुरजीत प्रजापत जी जहां भी सुन रहे हैं वो एक बार मंच पे आ गए। सुरजीत प्रजापत जी का भी हम दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे बीच में मास्टर बलवान सिंह जी, उमेद सिंह जी और महासिंह जी, ये सभी हमारे सम्मानित 11,000 की माला के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। आप सभी ने मास्टर बलवान सिंह जी, उमेद सिंह जी, महासिंह जी 11,000 की माला के साथ अपने बेटे का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम इन सभी का, सम्मानितों का, इन पिता तुल्य बुजुर्गों का, सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। एक बार और जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे का हौसला बढ़ाएं। आज गांव ने, समस्त ग्रामवासियों ने, हमारे बीच में एक सम्मानित हमारे संदीप पंडित जी पगड़ी के साथ देवेंद्र कादन जी का मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम उनका भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। संदीप भाई भी मंच पे आए और पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाएं। हम संदीप पंडित जी का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं।
और सभी का जिन्होंने पगड़ी के साथ फूल मालाओं के साथ अपने भाई के कंधे से कंधा मिलाकर जो युवा साथियों ने समर्थन किया, मातृ शक्ति ने जो आशीर्वाद दिया, जो गांव की सारी सरदारी ने जिम्मेवारी की पगड़ी जो अपने बेटे के सिर पे रखी, सभी का हम दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। आपने आज अपने बेटे अपने भाई को सही में ऊर्जा ताकत देने का काम किया है। यही ऊर्जा ताकत आप सबकी सेवा में लगाएगा आपका बेटा, इस गनौर विधानसभा क्षेत्र के विकास में लगाएगा। अनिकेत हमारे युवा साथी भी अपने भाई का माला के साथ मान सम्मान बढ़ाएंगे। हम अनिकेत भाई का भी दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी का हम दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपने बहुत मान सम्मान प्यार अपने बेटे को दिया। अभी एक बार मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक बार पूरे जोश के साथ नारे लगाएं। उसके बाद देवेंद्र कादन जी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे, लेकिन दोनों हाथ उठाकर इतने जोश के साथ नारे लगाने हैं कि आपकी आवाज पूरे गनौर विधानसभा क्षेत्र में जानी चाहिए। हमारे सम्मानित उमेद सिंह जी जहां कहीं भी मेरी आवाज को सुन रहे हो, एक बार वो मंच पे आ जाएं। उमेद सिंह जी एक बार मंच पे आ जाएं। दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ आपको नारे लगाने हैं। भारत माता की, थोड़ा सा और जोश दिखाइए। भारत माता की। एक बार यही जोश अपने बेटे अपने भाई को भी दिखाना है। मैं आपको बोलूंगा देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। आपको दिल से अपने बेटे अपने भाई के लिए आवाज निकालनी और बोलना है, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज में गूंज इतनी हो और दिल से आवाज निकले कि आपके बेटे आपके भाई के रोम रोम को महसूस हो जाए कि गांव की 36 बिरादरी, ये गनौर विधानसभा की सारी जनता सब अपने बेटे के साथ हैं और सब अब की बार मिलकर अपने बेटे को विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। पूरे जोश के साथ दोनों हाथ उठाकर आपको महसूस कराना है। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा जोश और दिखाइए। देवेंद्र कादन आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली आपके लिए हो जाए जो आपने इतना मान सम्मान प्यार अपने बेटे को दिया। जितने भी सरपंच साहब यहां मौजूद हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि सभी गांव का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सरपंच प्रधान जी एक बार मंच पे आ जाएं। जितने भी सरपंच जी प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, सभी से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरा अनुरोध है कि एक बार सभी सरपंच साहब एक बार मंच पे आ जाएं। सभी मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में हमारे एक राजेंद्र सरोहा जी एक सम्मानित, उनके कुछ अपने मन के विचार भाव हैं, वो अपने मन के विचार भाव रखेंगे। तो एक बार मैं राजेंद्र सरोहा जी से अनुरोध करता हूं कि वो जहां कहीं भी है, मेरे को नाम लिखवा के गए थे, एक बार मंच पे आ जाएं। राजेंद्र सरोहा जी। और उससे पहले हमारे बीच में प्रधान जी, सरपंच का क्या नाम है, देवेंद्र प्रधान जी से भी एक बार अनुरोध करता हूं, पहले एक बार 1 मिनट वो अपने विचार रखें। देवेंद्र प्रधान जी आ जाओ। प्रधान जी अपने विचार रखेंगे एक बार। हेलो, गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं बहनें, मैं गांव की तरफ से बड़े भाई देवेंद्र कादन का गांव में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में राजेंद्र सरोहा जी हैं, उनके कुछ विचार हैं वो भी रखेंगे। राजेंद्र सरोहा जी। मैं सभी से पहले देवा टीम को अपने गांव में पधारने के पर हार्दिक धन्यवाद करता हूं और मेरे जितने गांव के सम्मानित मंच पर जितने भी बैठे हैं इनको भी, और जितना गांव के आदमी आए हुए सभी का धन्यवाद है। तो मैं सबसे पहले एक नारा लगवाऊंगा देवेंद्र कादन जी के बारे में। सभी ने हाथ उठा करके नारा बोलना है, गुवांडी भाई देवेंद्र कादन की, गुवांडी भाई देवेंद्र कादन की। चलो बोलूंगा। एक दो को सम्मानित करना, ठीक है जी।
आ जाओ। तो भाई मैं जो अपने गांव में देवेंद्र कादन भाई जी ने जो हमारे गांव में सहायता करी है गरीबों के लिए, सबसे पहले तो कम से कम 50-100 ग्राम एम्बुलेंस आई है, उसके लिए भाई का धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे गांव में आपदा आई थी, जैसे अब ये बारिश के कारण एक मकान गिर गया प्यारे वाल्मीकि का, प्यारे की वो होता है कि उठ का स्टेज पर आ जा, तो इस प्यारे की वो मकान जो गिरा है 10 बाई 12 का कमरा भाई साहब ने बनाने का वादा किया और बना कर देंगे पूरा। आज मिस्त्री और मजदूर लगा दिए थे, ये गांव के लिए बहुत बड़ी बात है कि तो ये प्यारे की वाल्मीकि वो आ रही है, बस ऊपर आ जा, ऊपर आ जा, ऊपर आ। कोई नहीं, 10 बाई 12 कमरा। हाँ बोलो, तू बोल दे क्या था। हेलो, या मंच पर हमारे गांव में पहुंचने पर जो मौके सरपंच हैं, पूर्व सरपंच है, मैं उनका करम सिंह सरपंच है शेखपुरा से, मेहर सिंह सरपंच है बजाना कला से, बजाना खुर्द से सरपंच है, यशपाल बाबा सरपंच है पुरखास से, नदीपुर माजरा से सरपंच है, बांबर से सरपंच है, आहिर माजरा से सरपंच है। जितने भी सरपंच साथी गांव में पहुंचे हैं मैं सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। गुरमेल सरपंच भाई सब तो ठाडा सरपंच है। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये प्यारे की बुआई है जी, इसका 10 बाई 12 का कमरा बनाने की इन्होंने देवेंद्र कादन जी ने, हाँ ये है जी, तो इनको आज सम्मान राशि के तौर पर 10 बाई 12 कमरा बनाया जाएगा जी। आज मजदूर लगा दिया, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। एक और दूसरी बात थी जो हमारे राज सिंह हैं जी, आ जाओ ऊपर आ जाओ, आ जाओ। इनका भी एक मकान जल गया था किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इनकी भी राशि भाई साहब देवेंद्र कादन ने पता चला तो इनको भी एक सम्मान राशि दी गई थी जो इनके मकान की मरम्मत होगी थी। एक माला दे नहीं है भाई, बोल ही रहा था बस से। भाई इनके लिए एक जोरदार ताली बजा दो। एक तीसरा भाई साहिल सन्नोप राजेंद्र भाई, जो खेल प्रतियोगिता में भाग ले रहा था, तो हमने भाई साहब को इनवाइट भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी देवा टीम की तरफ से चौधरी तेजवीर सिंह नोलथा से देवेंद्र कादन जी के मौसा जी फिर भी खेल प्रतियोगिता में आए और खिलाड़ी का सम्मान राशि देकर सम्मानित किया था। तो साहिल एक बार स्टेज पर आ जा भाई। तो इसके लिए भी देवेंद्र कादन भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। साहिल कित गा भाई, आजा। हाँ, तो भाई ये तो जो मानने योग्य है, ये तो भाई जी ने जो ऊपर आजा भाई जो सम्मान करा काम का, इसके लिए एक बार धन्यवाद और जोरदार से ताली बजा दे भाई। जो खेल में एक लड़के ने भाग लिया था ट्रैक्टर प्रतियोगिता में, उसके लिए भी जो सम्मान करा है, और आगे भी जो खिलाड़ी होगा उसके लिए भी देवेंद्र कादन जी आगे तत्पर रहेंगे। तो अपने बेटे को बेटी को खेल के लिए आगे प्रोत्साहित कर आगे निकाले, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोहा साहब। अभी एक बार समय सीमा का ध्यान में रखते हुए काफी देर से आप अपने बेटे अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं, सभी उत्सुक हैं उनके विचार सुनने के लिए। तो मैं देवेंद्र कादन जी से भी निवेदन करूंगा कि अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे अपने भाई का हौसला बढ़ा दें। अभी जयकारे से आपने सबने मिलके जयकारा लगाना है। पहले मैं बोलूंगा जय दादा खेड़े की, आपने जयकारा लगाना है। जय दादा खेड़े की। यार मेरे गुआंढी है, ताकत पूरी दिखानी पड़ेगी। जय दादा खेड़े की। अब चुगन वाली माता की भी जयकारा लगाना है। चुगन वाली माता की, चुगन वाली माता की।
अभी एक जयकारा और आपको लगाना है दादा उदयवाड़े की। जय दादा उदयवाड़े की, जय दादा उदयवाड़े की। धन्यवाद। एक गुहांडी नौजवान का, एक गुहांडी बेटे का, एक गुहांडी भाई का कैसे स्वागत किया जाता है। आज इस बड़ी गांव की पवित्र भूमि ने, इन नौजवान साथियों ने, इन बुजुर्गों ने, इस मातृशक्ति ने, जिन्होंने मेरे सैकड़ों मेरे सिर पे हाथ रखे, और ऐसे मेरे नौजवान भाई जो वहां नहर से लेकर गांव तक कंबाइन मशीन पर ऐसा एहसास कराया जैसे कोई ओलंपिक में मेडल कोई नौजवान लेके आता है। ऐसे स्वागत के लिए, ऐसे स्वागत के लिए मैं पूरे ग्रामवासियों को, विशेष तौर पे इन नौजवान साथियों को, इन मातृशक्ति को, पितातुल बुजुर्गों को मैं इस पवित्र चौराहे पर सिर झुका के नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी मंच पे आपके सारे गुआंडी सरपंच, पूर्व सरपंच और हमारे कई जिला पार्षद साथी, ये सतीश सीताबाईपुर खासे जिला पार्षद है, नैन साहब बैठे हैं, नैना गांव है मोहाने के पास, वहां से जिला पार्षद हैं, और कई सरपंच मेरे समक्ष भी चेहरे नजर आ रहे हैं, पूर्व सरपंच भी हैं, और बहुत सारे गुआंडी भी यहां पर मेरे गांव के भी, और गुआंडी भाई सारे यहां पहुंचे हैं, उनका भी सबका धन्यवाद है, स्वागत है। देखिए, किसान के बेटे का, एक गरीब किसान के बेटे का आज जो स्वागत, जो सत्कार बड़ी गांव ने, इन सम्मानित बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने आज जो किया है, मैं समझता हूं मुझे आज खुद पर गर्व महसूस होता है। और जो ये पगड़ी मेरे सिर पे जिम्मेवारी की इस गांव ने रखी है, इस पगड़ी की जिम्मेवारी का एहसास मेरे को बखूबी है, और मैं विश्वास दिलाता हूं, जैसे मैंने कहा था, नेता नहीं बेटा, आपका भाई, आपका बेटा हमेशा जीवन भर आपका बेटा बन के रहेगा। स्वागत तो डेली के कई कई प्रोग्राम हैं, दिन में सवेरे कहीं होता है, दोपहर को कहीं, शाम को कहीं, लेकिन आज जो ऊर्जा मेरे गुहान ने जो मेरे को ताकत दी है, वो ताकत, इसकी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करूंगा, नेक कार्य करूंगा, आप सबकी भलाई के लिए कार्य करूंगा। मेरे हाथ में कुछ सम्मानित व्यक्तियों का एक गाल भी लियो भाई, कुछ मेरे कुछ याद भी ना रहा। वैसे तो इस कागज पे 15-20 नाम लिखे, कुछ गुआंडी भाई भी हैं, लेकिन यहां इस प्रांगण में सैकड़ों ऐसी मूर्तियां हैं, ऐसे चेहरे हैं जो कई सालों से, कोई साथी 8-9 साल से, कई साथी तो 15-20 साल से, और एक आध तो ऐसा भी आए हैं, मेरे ग्रामवासी भी हैं, दोनों गांव से, बजाना कला और खुर्द से आए हैं, तो सारे मेरे अजीज हैं। हो सकता है इसमें किसी सम्मानित व्यक्ति का नाम ना हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मेरे छोटा भाई कहूं कि बड़ा भाई, यहां के युवा सरपंच देवेंद्र सुरवा भाई, पूर्व सरपंच प्रेम जी, हवा सिंह जी,
उमेद सरोहा जी, भीम फौजी जी, सुल्तान सरोहा जी, राजवीर फौजी जी, राजेंद्र बलारा जी, रामेश्वर बलारा जी, रामेश्वर सरोहा जी, राजेंद्र नंबरदार जी, डॉक्टर सुखबीर जी, जगदीश फौजी जी, राजेंद्र बूरा जी, भोला जी जो रविदास समाज से हैं, सुभाष कश्यप जी, रामफल कश्यप जी, जय नारायण पांचाल जी, पलेराम प्रजापत जी, रामेर जी, सुरेश लंबू जी, जगपाल पंडित जी, पाला कश्यप जी, और भाई जितने सारे जी बच के सारे आगे भी लिख रखे भाई। सुनील सन्नोब धनराम, सुनील सन्नोब रणबीर, पप्पू सन्नोब महासिंह, आजाद बलारा जी, अनिल भाई और बिल्लू और तमाम सम्मानित व्यक्ति जो मंच पे और मेरे समक्ष है, सबका धन्यवाद। देखिए आज जो ये मंच सजा और मेरी मातृशक्ति का भी विशेष धन्यवाद। दाल ढोकरी के टाइम पे, रोटियां के टाइम पे पिछले 2 घंटे से अपने बेटे अपने भाई के सिर पे हाथ रखने के लिए उसको करता। पांच अक्टूबर को चुनाव होना है, अपने गन्नौर में चुनाव है। इस गन्नौर को दो चेहरों चुनाव के बीच में है। आप लोगों को 5 अक्टूबर को इस बात का फैसला करना है कि भाई इस गन्नौर की बागडोर एक किसान के बेटे के हाथ में जानी चाहिए या फिर एक नेता के बेटे जिसके पिताजी 4 बार 5 बार मंत्री एमपी रहे हो, जो नेता जिस का मतलब एक इसलिए कहा, मैंने स्वयं को बेटा इसलिए कहा, बेटा वो जिसने किसानी करी हो, जिसने सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके शहर में नौकरी के लिए धक्के खाए हो, कागज अपने हाथ में लेकर नेताओं के पीछे 2 साल 2.5 साल नौकरी, शहर में जाकर नीचे बैठ के फुटपाथ पे सब्जी बेचने से लेकर मैंने बेटा वर्ड उसको दिया है जिसने किसान की पीड़ा को महसूस किया हो। एक किसान के घर में जन्म लेकर के दुख तकलीफ आवे हैं, कौन कौन सी समस्या के समस्या एक बेरोजगार युवा की है, कौन सी जवाब उसको सारी तकलीफ
को हां कहा, क्योंकि इन नेताओं के असली रूप मैंने भी देखे हैं और आपने भी देखे। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे समक्ष बैठे हैं। इन हमारे काका ताऊ दादाओं ने, किसों ने 10 बार वोट डाली, किसों ने 12 बार वोट डाली, किसों ने 9 बार वोट डाली। आज तक के जितनी भी वोट डाली, नेताओं को डाली। काम करने की बारी आई, जिसको भी बनाते, जब काम करने की बारी आती थी तो इन नेताओं को गांव में एक परिवार पकड़ लिया, 2 पकड़ लिए, आप अपने ठिकाने अड्डे बनाए। मैं बताना चाहता हूं इन सारे नेताओं की कहानी, और विशेष तौर पे उस नेता की कहानी जिसने 10 साल आप लोगों ने जिसको मौका दिया, पिछले 5 साल और मिला लो तो 15 साल वो आपके बीच में है। यदि मेरी इस बात में सच्चाई ना हो तो कृपा करके हाथ उठा के मुझे बोल देना कि देवेंद्र भाई आप झूठ बोल रहे हो। इस नेता ने ना केवल बड़ी में, ना केवल हलाने में, ना केवल सिर डाड़े में, पुख्तड़े में, बजाने में 70 के 70, हमारे हलके में 70 पंचायतें हैं और ये शहर है। हर गांव में इसने एक ठिकाना बनाया, किसी किसी गांव में 2 ठिकाने बनाए। उन्हीं के घर में आना जाना, उसी के घर में फायदा पहुंचाना, उसी के घर में नौकरी, उसी से सलाह मशवरा करना। भाई इलेक्शन में फलाने का क्या ब्योंत है, दूसरे का क्या ब्योंत है। कहने का मतलब एक ऐसा नेता जिसने इस पूरे गन्नौर हलके में हर गांव में 1-1, 2-2 ठिकाना बनाया, और बाकी जनता, ये हमारे गरीब वर्ग के भाई, बैकवर्ड भाई, इनको केवल वोट देने की मशीन समझा, केवल वोट देने की। यदि ऐसी बात यदि जो मैंने कही कि भाई उस नेता ने 1-2 अड्डे दिखे हैं, उससे फालतू अड्डे को ना दिखते, कोई झूठ हो तो मेरे तो बता दो भाई झूठ बोल रहे। लेकिन वोट 1-2 अड्डे तक के काम चलो भाई। वोट चाहिए 36 बिरादरी की। अरे वे उसका सीजन आ गया, आपके बीच में चेहरा बदल करे, चेहरे को मासूम बना करे दोबारा आपके बीच में आया है, फिर से आपके बीच में आया है, और अब कह रहा है इन बुजुर्गों को, ताऊ ईब की बार बना दो। ईब मैं सुधर गया हूं, ना तो मैं इन बूढ़े पे पांव दबवाता, और ना मैं ईब ये ना अड्डा पे जाता, मैं नए अड्डे बनाऊंगा, इन्हें बकाओ है। मैंने कहा अब उसने ये बोलना शुरू किया है, मैंने पैर दबवाने छोड़ दिए हैं। क्या वो इन बुजुर्गों से वास्तव में पैर दबवाता था? क्या इसमें सच्चाई है? बीएसटी कॉलोनी में अपने दफ्तर में हमारे बुजुर्गों से, अपनी उम्र से 20 साल 25 साल बड़ी उम्र के इन बुजुर्गों पे पैर दबवाता था। झूठ हो तो मैंने रोक दो भाई, रहने दे, झूठ बोले। दबवाता था कि नहीं दबवाता? उठा के बताओ भाई। दबवाओ था, लेकिन ईब की बार 5 साल पहले तुमने उसका इलाज किया था, ईब सुधर रहा है, ईब छोड़ दिए। ईब नई स्कीम लेकर आया है। ईब नई स्कीम के साथ आया है, 3 तरीके के भाषण लेकर आया है। गन्नौर को 3 भागों में बांट के, भाई रेलवे लाइन तो उरे यहां पर आएगा, हमारे इन बुजुर्गों से, इन सम्मानित सभी भाइयों से एक ही बात बार बार बोलता है कि भाई अपनी चौधर ले आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता यो,
मेरा नेता यो, कई बार उस नेता का नाम ले है, बार बार जुड़ से ने सीएम बनाने की बात करे, कई बार ले हुआ इकट्ठा। लेकिन एक बार बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, जिस नेता ने नुका है मेरा नेता, मेरा मुख्यमंत्री, एक बार उससे पूछ के देखो, नुका दे भाई, जिसने तू अपना नेता बतावा है 5 साल पहले वही नेता सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ने आया था। 5 साल पहले वही नेता एमपी का इलेक्शन लड़के गया। किसने गोभी खोदी? इसने खोदी। खोदी नहीं खोदी, कहते झूठ बोल रहा हूं, हाथ आगे बताओ, मैं खोदी कि नहीं खोदी? खोदी। और ये जो सी चौधरी की बात करे, सीएम की कुर्सी का लालच दिखावे, यू सीएम की कुर्सी का लालच क्यों ना दिखाता? खतरे में जाकर भाषण दे है कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, कांग्रेस में अपने दम पे हूं, किसी का शान लेकर ना रहा, खतरे में जाके अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा बताता है। जाके भाषण सुन लो। उड़ा चौधरी की बात को नहीं करता, ना शहर में चौधरी की बात करता, चौधरी की बात करे है चौधरिया में आके, ताकि अटके दोबारा मेरी दुकान जमा दो चौधरी की आड़ में। गलत कह रहा है कि ठीक कह रहा? चौधरी के सपने दिखा गए, सीएम की कुर्सी दिखा गए, और नुके है यार दोबारा जमाओ ना मेरी दुकान। लेकिन इस गन्नौर ने मन बनाया है, गन्नौर ने मन बना रखा है। पिछली बार लगभग 11,000 वोट का सगन गाल के पानीपत टोल पर छोड़ गए थे, ईपके ने 51,000 तक छोड़ गाऊंगे करनाल। 51,000 तक कम पड़ता नहीं लगेगा, उन्हें कह रखी है जब 51 तक कम छोड़ दिया फिर कूद गाऊंगा। जब पेंडा छटवाना हो इस बारी नेता थे, तब 51,000 की तैयारी करके रखी हो, करड़े हो लियो किन फालतू होगी थे, फिर उड़े बाघ पत्ते दुआ देंगे उन्हें। मेरे कहने का मतलब, जो आदमी बार बार चेहरे बदलता है बहरूपिया है। बड़ी गांव में गन्नौर मंडी है कि लाला जी, सेठ जी, देख लियो कदे गुंडा का राज आ जाए, कदे ठड्डा का राज आ जाए, शहर में जाके आपके बेटे को मातृशक्ति आपके बेटे को गुंडा बताता है, किसान के बेटे को गुंडा बताता है। क्या किसान के घर में जन्म लेने का मतलब गुंडा कहलवाना है? आपके बच्चे गुंडे हैं या इनके बच्चे गुंडे हैं या आप सबके बच्चे गुंडे हैं? उस नेता से जवाब लो। क्यों भाई? आड़े चौधरी के नाम पे वोट मांगे, उड़े हमारे छोरे ना हमारे भाई ने उड़े जाके तू गुंडा बतावे है? कौन सी गुंडागर्दी करी 8.5 साल में? कौन सी गुंडागर्दी करी? जिस आदमी ने छोटी सी दुकान से लेके और बड़ा कारोबार व्यापार खड़ा किया, क्या इतना बड़ा व्यापार कोई गुंडा खड़ा कर सकता है? इतना बड़ा व्यापार मन्नत ग्रुप कोई गुंडा खड़ा कर सकता है? एक बार बता दो हाथ खड़के, नहीं कर सकता। इसलिए जो इसके ये रंग हैं, जितने इसकी सूरत है, जो ये बहरूपिया है, इसकी असली सूरत वही है जो आपने 10 साल पहले व्रत रखा है। वोट लेने की बारी आई, 36 बरादरी जिंदाबाद। ये हमारे दलित भाई, वाल्मीकि भाई, रविदास समाज के भाई, धानक समाज के, बैकवर्ड भाई, बताओ हाथ खड़ा करके 10 साल में किसको नौकरी दी, किसका काम हुआ? किसी भी नरम आदमी का नहीं। बस जोन से वो अड्डे बना रखे थे उनने भी सलाह ले है और उससे काम आई। गरीब आदमी को नौकरी यदि किसी ने दी है तो इस सरकार ने दी है जिनके फोटो लगे, बिना पैसे के, बिना सिफारिश के और बिना इन बुढ़ा पे पैर दबाने के इसी सरकार ने सरकारी नौकरी दी है। आज गरीब परिवार का बच्चा जो पढ़ाई में होशियार है, जिसमें काबिलियत है, उसको ना तो पैसे की जरूरत पड़ती और ना भी नेताओं के पास धक्के खाने की जरूरत पड़ती। ना हो तो बता दे, थारे गांव में नौकरी ना लगी होते। अपने गांव में
ऐसे ऐसे परिवारों के घर में दीवे जड़े हैं जिनका बेचारा का रोटी का भी जुगाड़ ठीक ठाक नहीं था। यह हर गांव की कहानी। इसलिए नया ढोंग डप्पा लेके आया है, मारे न बुढ़िया के कान में खुसर खुसर करा गए नुके है ताऊ पोता कौन सी क्लास में है? बूढ़ा बोला 14वीं में। बोला तेरे पोते की नौकरी पक्की बताइए ना किस होते बकावे। सारे बूढ़ा के कान में खुसर खुसर करा है के ने और कान में नुका जो है तेरे छोरे की नौकरी पक्की है गांव में और किसी आगे जिक्र मत करिए। बेवकूफ बढ़ाता है। मारे ये दलित वर्ग के भाई हैं, सब तक 100 गज के प्लाट बाटर लग रहा है। जिस दिन आया है 1 महीना सारा हो लिया। जित भी जावा इनके मोहल्ले में सीधा नुका है भाई वोट घेर दियो बनते 100 गज के प्लाट। चाहे को से गांव में पंचायती का को खूट रह हो चाहे न रह रहा हो पर प्लाट सब दे है भाई। और प्लाट देने थे तो मैं 10 साल पहले 10 साल तेरे को मौका दिया जब इनके प्लाट कटा गए। इसलिए इस बात का सोच समझ के फैसला करना है कि इस आदमी का असली चेहरा वही है जो आपने 10 साल पहले बरता था। इस बात का गौर करना है। दूसरी ओर आपका बेटा, आपका भाई, आपका गुआंढी जिसने बिना किसी चुनाव लड़े, बिना कोई सरकार में पद लिए, बिना एमएलए बने, बिना मंत्री बने, बिना कोई सरपंच बने, आप लोगों की सेवा करने का काम किया है। अभी राजेंद्र भाई बता रहे थे, मेरे को भी लिस्ट दिखाई, 128 परिवार हैं बड़ी गांव में जिन्होंने एम्बुलेंस, देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है। 128 ऐसे परिवार हैं जिसने देवा एम्बुलेंस का लाभ उठाया है और लगभग 19 ऐसे परिवार, गरीब परिवार की बेटी है जो देवा संस्था ने जिनकी शादी में मदद पहुंचाई है, जिनको चाहे दहेज का सामान हो चाहे उनके पूरा खर्चा हो, उनको वो किया है। और जो हर साल बच्चों को स्कूटी बांटते हैं, हर साल बच्चों को लैपटॉप बांटते हैं, वो पढ़ाई के लिए बांटते हैं ताकि ये बच्चे मिल के पढ़ें, आपस में कंपटीशन करें और हमारे हल्के का शिक्षा का स्तर ऊपर जावा, इसलिए हर साल प्रोग्राम कराते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सबसे ज्यादा काम हमारी संस्था ने उस काम पे उसके लिए किया है। इसलिए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, थोड़ा लंबा बोल गया, देरी से भी पहुंचा, उसके लिए भी माफी। बस मेरा एक ही आप सबसे अनुरोध है, वोट सोच समझ के गालनी है कि मेरा कित की बीमारी आड़ा मारा आगा हंगा कर रही नहीं कर रही। छोरा थारा, गुआंढी थारा, उसका नुना बेरा औलाड़े में जावे है, वोट जब मांगे जब तेन कह दे मैं औलाड़े का हूं, जब मंदिर में चंदे की बात आवे जब कह दे नहीं 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 मेरा तो वहां गांव है। चंदे की बात आ जा फिर नु कह दे मैं तो खरर गांव, और जब वोट की बारी आओ नु कह मैं तो औलाड़े का हूं। किसी भी गरीब परिवार की बेटी को 100 रुपए का कन्यादान भी डालना हो तो जून से चेले चपेले गिले चला है ना गांव में, उन तक कह दे देखिए रखो ले रखने ले रहा, 100 रुपये भी उस पर गलवाओ है और को टोक दे है, फिर भी कोई असर नहीं होता। बोला ठीक से सब है, क्योंकि गरीब आदमी के नाम का, किसी और काम के नाम का, जगह जगह कई गांवों में जाता हूं, कोई नु कहे भाई मारे गांव में 200 कट्टे सीमेंट के उठ के गया था, एक भी कट्टा नहीं आ लिया। कोई बालक कहते हैं अग भाई बालक थे तो भाई यह तो शुद्धि है दूर ते दिखे में से, यो भी किसान का बेटा बता सके है आ कौन सी मैथ है, कितना डोका दूर ते देख के बता दूंगा। यो उसके छोरे थे पूछ के देख लिया ABCD का भी ना मेरा।
तो सारी बातें हो गई। मैं तो एक बात आपके बीच में बोलने आया हूं भाई। देख, आड़े घने नेताड़े भाषण की जरूरत नहीं है कि मेरा गुआंढ है। सबने परिवार का मेरा भाई कौन से परिवार तय है, ऐसा कई सालों के तारे बीच में भी है के कमी है के खूबी है। यो चुनाव है, इस चुनाव में हो सके कि नहीं हो सकते कि मंत्री के घर में वह कोख लेनी पड़ेगी, इस बात का फैसला तब न करना है। अर्थारी कोखते भी खाली सरपंच पैदा हुए हैं और वह ब्लॉक समिति और जिला पार्षद रह ले हैं, तब भी इस बात का फैसला कर लियो कि हाँ हमारी भी कोखते कोई एमएलए मंत्री बन सके, तब न तो यो फैसला करना है। और वह बैठे हमारे काका ताऊ दादा, थारे भीतर में कौन सी भावना चल रही है? छोरे न दे सारे राजी है, छोरे बदे कह दे मन कई भौके बे बोला छोरा बहु बहुत कामल बढ़िया बेचारा का है, पर वो पार्टी की बात पे आगे गेरे उलझे थारे उलझे है ना उलझे, गलत तो नहीं कह रहा। ठीक तो पार्टी में जिस दिन मैंने छोड़ी सारे बड़े नेता तो पूछी जो इनके जुड़ से सब तो बड़े, क्योंकि उसकी टीम में था, मैन आदमी था। मगा जी बताओ मेरा भविष्य 12 साल हो गए धक्के खाते ने, 2 दिन ले लिए। मगा भाई या जो हमारे हल्के में बीमारी है इसने ऊपरला लड़ा दे, मैंने छोटा इलेक्शन लड़ा दे, कोई जवाब नहीं मिल रहा। मैंने बेरा था अगर भाई अड़े राख होने लकड़े, इसकी जड़ गड़ रही है, इसकी जड़ते मैंने दूसरे तरीके से जाकर पढ़नी पड़ेगी, इसलिए रास्ता बदलिया, ज्यादा राह बदलिया। ईब तब ना अपनी आंखें देख लिया सारा खेल, ना यू थारा जाल समझ में आया होगा। एक आदमी खड़ा होगा उसने हरवाया है, फिर वो दूसरी पार्टी में भाज्या है, फिर उसका कुर्ता पकड़ के लेगा ना 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 होगा, टिकट भी देगा। इसका मतलब ईब के में हो सके अगले के गले में यू मरा, अगला नू सोच रहा हो भाई हल्के वाले आप इलाज कर देंगे, पहला दब रहा हो को बीमारी हो रही, लेकिन थारे हाथ इलाज कराना चाह रहा हो, नहीं तो थार तो बताओ समार दो बड़ी आती है, अगर ना होगा ना उसने दुखी करेगा ना। गलत क्यों कर कह रहा? जे एक नेता सरेआम उसने हरवान लग रहा, सरेआम पाछले चुनाव में नहीं देखा यू गया 10 दिन पहला, टांग में मौच होगी थी, मेरा लग गया नू कहता बोला टांग में दिक्कत है, ज्यादा वोट नहीं मांग सकता, इसकी कर दो ना फिर ठीक, तो मोच ने इसकी मोच ने ठीक कर दो। वो बड़ा नेता भी नू कहा है भाई गन्नौर वाले तुम कर दो, मेरे बस का नहीं। असली कहानी को समझना है कि मैं जाल साज में नेता भी फंस रहा है, वो इस बीमारी ने तुम अपना ठीक कर लो। और भाई अकेले के नौरते तो कोई सेध नहीं है, का मोर लगेगी। ये सारी बातें हैं। एक असली से तड़के सांझ होके वह घरा उठते बैठते टेलीविजन के आगे एक के चर्चा रहे, जब फिर ना दे तड़े उतरते सारे पूछोगे के रहा रहे। एक अच्छी बात तो यह है बस सारे हमारे इन भाइयों ने, हमारे काका ताऊआ ने, दादा ने, ये जो खेल होया ना कई दिन जब पहला चल रहा, जो उनसे ये नोटा का ट्रक ले गए हम कहे भाई 100 करोड़ दे दिए दिल्ली में दूसरी पार्टी थे, अरे 100 इस देंगे कांग्रेस वाली थे, अपनी मर्जी का कैंडिडेट कांग्रेस में ले गाओगे और भाई हम लड़ेंगे, जो उनसे नोटा का ट्रक। बुजुर्गों नौजवान साथियों, इन नोट वाले ट्रक ना तो देखेगी ईडी, सुन लो बात, वो आप संभाल लेगी, वह नोटा का सारा हिसाब हो जाएगा। टिकट को ना मिला रेल की भी,
गन्नौर हल्के की तो बात दूर की है, जब रेल की भी मिल जाए तो मन ने पकड़ लियो। हर पार्टी ने, हर नेता ने बेरा भाई सीट कौन काट सका है, कौन जीता है, किसने पार्टी की मदद कर रखी है, किसने पार्टी की गद्दारी कर रखी है। ऐसे लोग जिसने 10 भूमाफिया, चरित्रहीन, कैसे टिकट मिल जाएगी? इसका मतलब जब करोड़ वाले रहेंगे, फिर तुम किस जा रहे हो? फिर असली टिकट मेरा किधर ही है? असली टिकट यहां बैठी जाड़ेगा, यहां बैठी, यह टिकट है। जो आवाज यहां से जाओगी, जोन सी आवाज जमीन से जाओगी भाई, टिकट हुआ है। और जोन सी वह नुके है पीछा में न्यू कर दिया करे, न्यू कर दिया करे। मैं तो भगवान तो 100 बार नु पुकार करूं, मगर एक बार करते नहीं हो काम। न्यूनतः तो यू आ जाएगा, न्यूनतः यू आ जाएगा, काट है जूसिन का। लेकिन मैंने बेरा है थारा जी साहब इस बात में, इस बात का भी बेरा है। हमारे बूढ़े कहते घीहा गल जाएगा, दोनों बीमारी इकट्ठी आ जा और छोरे ना बीच में काट ले जा। लेकिन टिकट तो आवेगी, टिकट आओगी। अरे भाई जिसी भी अपनी ने चुचकार गए और गुआंडी पे नु कह दिया बोले जय छोरे कर दिया पार तू। एक में शुरुआत करा दो, शुरुआत जरूरी हो है। एक बार मोर मरवाओ, फिर तो अपने आप गाड़ी पटरी पे चलेगी। छोरे के काम बोलेंगे, उसकी पहचान होगी काम तय। ये जो से नेता 5 साल में अपने मरवा का मोर, अरे भाई करके बड़का के रिश्ते बरवा का बात है। ये भी कर्मा छो माओगा, मैंने शेखपुरिया सरपंच खड़ा है, शेखपुरिया सरपंच नु गया कोना छो माता। तब भाई हम सियासत में, राजनीति में आए हैं काम करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। फलाने गांव का छोरा, किसान का बालक, इसने काम करके दिखाया, उस काम के लिए आए। सरकार ने 2 बार मेरे को चेयरमैन बनाया, 2 बार मैंने 5 मिनट में इस्तीफा दिया। गाड़ी, ये सरकारी कोठी, अरे भाई ये गनमैन, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं जब खड़ा होऊंगा जब मेरा गन्नौर खड़ा करेगा। मैंने नहीं ली भाई, 2 बार चेयरमैन बनाया, आप सबके बीच में सारी खबर आई, मैंने चेयरमैन ही नहीं ली। इसलिए अपने को तो भाई काम की भूख है, पहचान बनाओगे अपने काम की। और रुका पड़वाओगे भाई फलाना हल्का और फलाना एमएलए, भाई रुका पड़वाओगे। इसलिए अरे काका ताऊ हाथ जोड़ के समझा के जाऊं हूं, उस कैसेट ने तार दो। देवेंद्र भाई कड़ा गया, आजा मेरे साथ, आजा आजा, कुछ ना कहता, डर रहा है, आजा डर है भाई, बहुत शुद्ध हमारा भाई। एक बात बताऊं भाई, 1 नंबर का छोरा भाई। यो देवेंद्र खड़ा भाई, भाई ने रात ने फोन किया 12 बजे 2 बजे, भाई के लिए ना खड़े पाए हो। गांव के जो भी कोई ग्रांट की बात हो, ना दुआई हो, और वह काम सुनिए तो कोई काम के लिए आधी मिनट की, आधी सेकंड की आपके भाई ना गैर हाजिरी लगाई हो तो बताओ। मन कुछ कई थोड़ा है, मन तो खोए बहादुर है मेरा भाई है। इसलिए मैं तेन कहूं भाई, देख आप कामयाब है, अपना छोरा अपना भाई कामयाब करना है। बस सारी चीजें छोड़ दो, किसी ने को छोटा मोटा काम करा रखा है, 1-2 बार वोट गिर दी यार, क्या मतलब हो रहा है? अगला अपने एरिया में जाओ, हम अपने घर का आदमी बनाओगे भाई, हमारा एमएलए गन्नौर का होना चाहिए। इसलिए ये सारी चीज है भाई, सोच समझ के भाई को देख लियो। मैं आखिरी आधी मिनट में एक बात कह के जाऊं, ये हमारी माँ बैठी है, हमारे ताऊ दादा बैठे भाई, जन्म लेने का अधिकार सबको है। कदे आने भाई बेटे ने गर्भ में मार दियो, ध्यान रख लियो, कदे गर्भ में मार दियो। एक जरूरी बात छूट गई थी, इसने हमारे सरपंच ने याद हुआ भाई। कई बार एक समस्या जरूर आओ है, कई हमारे भाई, कई काका ताऊ
चाहे कौन सी भी पार्टी में हो, वो है हमारे वो नहीं छोड़े थे, मतलब है उस समस्या का जिक्र कर दूं। उनके दिमाग में एक बात आ जाए, बोला यार हमारे गांव का फलाने का छोरा, परले पाने में उसका छोरा, और वह न्यून उसका छोरा अड्डे पे, बोला कादन के घने खास है, चौखे उसके नजदीक से, कदे काल ने इसके वोट भी गिरे, इन्हें जितवाओ भी कि तो हमारी गिनती ना हुए, और को काम पड़ जाता फिर कदे अड़े इन काम के पाछे खड़ा होना पड़े। यह बात है खाली बड़ी की कोना, सारे हल्के में यह बात है। मेरे ताऊओ, मेरे दादाओ और मेरी मातृशक्ति, मेरे भाइयों, आड़े सैकड़ों भाई से हैं गांव में, गरीब वर्ग के भी हैं जिन्हें भाई व्रत रखे है, जाऊं देख रखे है। मेरी किताब में ऐसा कोई पन्ना नहीं है, मैं गांव के भाई सीधे आओ, सीधा नंबर लो और सीधा काम कराओ। और वह गांव ने जिसने व्रत रखा, सैकड़ों परिवार हैं, उन तसल्ली कर लो। जा आज थी आधी सेकंड भी लाई हो मेरे दोरैया बीमारी को ना, मैं गांव गए तो पूछूंगा। बतेरे ऐसे आदमी हैं जो अपने को जमींदारे में बिजी है, को काम धाम कर रहा है, को नौकरी पेशे वाला है। मेरे तो बतेरे मिल रहे हैं, नु कहते हैं भाई देख भाई देवेंद्र, हम करेंगे तेरी वोट करेंगे, 10 आदमियों में तेरी चर्चा करे हैं, लेकिन रोज की हाजिरी लाओ कदे। इसे बहुत सारे आदमी, अरे भाई जुड़ से भाई घने आवे हैं, वो भी अपने भाई हैं, वो भी सम्मानीय हैं भाई। इसलिए भाई इस बात ने कभी दिमाग तक अड़कर उन्होंने एक कोने में धर दियो। अगर भाई को दो बात होगी, किसो गेल को फर्क होगा, जिन्हें व्रत रखा उससे पूछ लो, और ना तो भी एक महीना रह रही व्रत के देख लो भाई। एक वो साबुन की मशहूरी आया करती, घड़ी साबुन, लत्ते धोने के साबुन की मशहूरी आया करती, बोला पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो यह वो ऐसा बन मान लो भाई, पहले इस्तेमाल कर लो, और जिन्हें इस्तेमाल कर रखा उनका तसल्ली कर लो, भाई छोरा हमारा भाई किसा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी में खराब मौसम में भाई एक भी आदमी अपनी जगह से नहीं हिला। इस बात को या जो हमारी दोनों तीनों मानता हमारे समक्ष है, ये विशेष आशीर्वाद मेरे सिर पे है। सब ने इतनी गौर से मेरी बात सुनी, इसको मैं अपना आशीर्वाद समझ के, और मैं थारे आशीर्वाद ने बढ़िया कामों में लगाऊंगा भाई। जिसी सोच जिस विचार की तुमने मेरे तो उम्मीद है, उस पर 21 करके दिखाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय दादा खेड़े की। नेता नहीं हो बेटा सबका सोच